हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए। और मेरा ये सोचना है कि अगर बच्चे क्लास 9th के बच्चे भी अभी से क्लास 10th के पैटर्न पे अगर रिवीजन करते हैं तो बेटर रहेगा उन लोग के लिए कि उन लोग के लिए 10th बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो आज ये मेरा वीडियो है। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर क्लास 9th ओनली. And in this video, I'm going to discuss one of the sample paper which is totally based on term 1 CBSE board pattern, which is going to become in class 10 for their board exams, right? So let us begin our video, this particular lecture. This chapter, these chapters, chapter 5, I will talk about my subject only, that is biology. And these chapters, chapter 5, according to our notification given by CBSE, Chapter 5, the fundamental unit of life, and Chapter 6. You know that these two chapters are going to come in your first term exam. Either it may be in the form of model test, it may be in the form of half yearly. It depends on the school, different type of school. So go for these two chapters. Okay. So let me begin and discuss my sample paper, which I want to discuss in front of you all. So here, this question bank I have just kept over here. ओके, क्या विजिबल है आप सबको? सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 1, राइट। क्लास पे ध्यान दोगे, क्लास 9 सेशन 2021-22. So totally based on the new session, right? 2021-22, totally based on the new pattern also, obviously. Subject science. All the questions are from all the three parts of the subject, that is chemistry, physics and biology. I will discuss from the biology part, and you will get this particular sample paper from my description box also, so that it will be easier for you all to practice at your home. Maximum marks you can able to see 40 marks. Time allowed all of you, that is 1 hour and 30 minutes, that is about 90 minutes, totally based on the class 10. Okay, general instructions as given in class 10, the same instruction given over here. The question paper contains 3 sections: section A, section B, section C. Section A has 24 questions. You have to attempt any 20 questions. यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं. 20 questions means 20 questions. Please follow the instructions. This is just a sample paper I am discussing over here. Maybe in your exams it may be in other format, but this format must be given in your exams because this is the format given by CBSE. Okay. So attempt any 20 questions. In section B, again 24 questions. Attempt any 20 questions. Section C has 12 questions. Attempt any 10 questions. Means 20, 20, 20, 20, 20 plus 10, sorry. So means 50 questions. So according to this, 50 questions and marks is 40. हालांकि ये पॉइंट आपके दिमाग में ज्यादा आप लोग को उस पर फोकस नहीं करना है, आपको बस अटेम्प्ट करना है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कैसे है. देखो, अगर हम देखें इसको, 50 क्वेश्चन है, मार्क्स 40 है, सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज 0.8 मार्क्स. इज इट क्लियर? आई होप इज इट क्लियर? Like question number 1, if you have attempt question number 1, like in 20 questions in section A, for example, 1, 2, 3, how many questions you have to leave? You have to leave at least 4 questions. You can leave 20 questions you have to attempt. Okay. So for example, if first question you have attempted, it carries 0.8 marks. तो बेसिकली मैंने फिर कहा ना, दिस इज नॉट योर पार्ट. बस आप ये फॉलो करो इंस्ट्रक्शन को कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बस बस वही करके आप निकलो. ओके. इसी तरह सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी, इस पे हमने काफी बात कर ली. अब हम लोग सेक्शंस पर आते हैं. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे पूछते हैं कि कोई नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स है. इक्वल मार्क्स मींस 0.8 अगर है तो सारे क्वेश्चंस 0.8 है, अगर 1 है तो सारे क्वेश्चंस 1 है. डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर गिवन बाय योर स्कूल, गिवन बाय इन योर एग्जाम्स. डिपेंड्स. According to CBSE, it is 0.8. Okay, let us proceed further. Like number 1, I will discuss my part. Okay.
So focus on that. I will discuss just my part. Let me just come to my part. Like question number 2, bio. Tongue is made up of. अब आप टिश्यू चैप्टर को भी चले जाओ, टंग में याद करो मसल्स है, ऑब्वियसली सी बात है कि मसल्स है, तो कौन सा टाइप का मसल है? स्ट्राइटेड मसल एंड स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब इसमें से आप टिक करना स्टार्ट करो, आपको क्या एक्सक्लूड करना है पहले वो एक्सक्लूड करो। कार्डियक मसल तो सबसे पहले एक्सक्लूड कर दो। आप सभी जानते हो कि कार्डियक मसल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट इन हार्ट ओनली। ओके ओके, स्ट्राइटेड मसल एंड स्मूथ मसल्स, दोनों मसल एक साथ कभी नहीं हो सकता है। टंग में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसे कहीं पर भी नहीं हो सकता है, दोनों में से आइदर कोई एक होगा, आइदर स्ट्राइटेड होगा या स्मूथ होगा। नंबर बी, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में अगर हम लोग बात करें तो हाँ ये लग रहा है। स्मूथ मसल तो बिल्कुल भी नहीं। स्मूथ मसल्स मतलब आपको टेक्सचर याद होगा, स्ट्रक्चर याद होगा, तो आपको याद होगा कि आपने एनसीईआरटी में कैसे पढ़ा है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी। अगर इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपके सामने बोलूं तो कैसे हम लोग कह सकते हैं दैट द टंग इज अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। आप लोग उसे कंट्रोल कर सकते हो, isn't it? अंडर योर माइंड कंट्रोल, अंडर ब्रेन कंट्रोल। ओके, एंड जो भी इसका ऑब्वियसली बात है कि ब्रेन अगर कंट्रोल कर रहा है तो प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम है जो इसको कंट्रोल करेगा, एंड देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ skeletal muscle. Skeletal muscle is found in other places as well, not just attached to the in the bones. जैसे हमारे दिमाग में क्या आता है ना कि skeletal muscle है तो भाई बोन्स के चारों तरफ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे बॉडी में कहीं पर और भी जहाँ पे इसकी जरूरत है, बिकॉज skeletal में बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होता है और हमारे पूरे पूरे बॉडी में टंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन है बी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं अगर क्लियर है तो इसमें मैंने कहा जैसा मैं इसको डाल दूंगी, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हमारा बायो पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विजिबल इन चीक सेल? चीक सेल सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एनिमल सेल है कि प्लांट सेल है। तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो चीक सेल है मतलब एनिमल सेल है, तो सेल वॉल, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले मुझे पता है आप लोगों ने तुरंत इसका आंसर किया होगा, मुझे इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करना। चीक सेल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट, दैट्स इट। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बायो। नंबर 4 इज नॉट ऑफ बायो, नंबर 5 भी बायो नहीं है। रिकवरी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर कैन बी डन बाय, yes, question number 7, chlorophyll is present in, right, chlorophyll is present in, अगर आपने इसको थोड़ा सा प्लास्टिक का स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा थैलाकॉइड, मैट्रिक्स, क्रिस्टे, स्ट्रोमा, राइट। तो अब आप इसमें से पहले एक्सक्लूड करना स्टार्ट करो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप एक्सक्लूड करो। क्रिस्टे तो एकदम हटा दो, क्रिस्टे इज अ पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको दिमाग से निकाल दो। मैट्रिक्स बेस होता है, मैट्रिक्स ऑल्सो द बेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसको भी निकाल दो। अब बचा हमारा स्ट्रोमा एंड थैलाकॉइड, हमें इन दोनों में से ऑप्शन में से चूज करना है, ए या सी। अब आपको मैं याद दिला दूं, जब आपने क्लोरोफिल को पढ़ा था तो क्लोरोफिल प्ले वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप का रिएक्शन होता है, एक होता है डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर लाइट एक्चुअली, एंड लाइट रिएक्शन रिक्वायर्स लाइट, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि थाइलाकॉइड में ही एक्चुअली आंसर तो मुझे पता है कि आप सब में से बहुत बच्चों को पता होगा, बट मैं उस आंसर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो कैसे बताएंगे। तो थैलाकॉइड्स जो होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्लास्टिक के अंदर होता है, और थैलाकॉइड्स में लोकेशन एक्चुअली क्लोरोफिल की होती है। स्ट्रोमा में अब क्यों नहीं होती है बच्चों? बिकॉज स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, इसलिए उसको तो आप एकदम ही एक्सक्लूड कर दो। अगर थैलाकॉइड आपके दिमाग में जरा भी नहीं आ रहा है कि थैलाकॉइड कहाँ पड़ा था, तो भी आप थैलाकॉइड पर टिक करके आ जाओ, क्योंकि जब स्ट्रोमा नहीं होगा, मैट्रिक्स नहीं होगा, क्रिस्टल नहीं होगा, तो थैलाकॉइड तो होगा ही होगा, isn't it? ओके, मतलब ट्रिक ही होता है भाई, कोई भी इस तरह के, मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ, इधर आपकी नॉलेज अगर स्ट्रांग है तो फिर ठीक है, अगर नहीं स्ट्रांग है तो आप थोड़ा ट्रिक लगा लो। ओके, नेम द मसल विच इज फाउंड इन विजरल ऑर्गन्स। जब हम बात करते हैं विजरल ऑर्गन्स की, तो व्हाट आर द विजरल ऑर्गन्स जब हम बात करते हैं, तो विजरल ऑर्गन्स में जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए आपके बॉडी के, फॉर एग्जांपल जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के आसपास है, वो विजरल ऑर्गन्स है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक किडनी ले लें हम, तो भी विजरल ऑर्गन हो गया। तो अब वहां पर आपको कौन सा मसल होगा? नेम द मसल विच इज फाउंड। तो अब आप इसमें देखो एक्सक्लूड करना स्टार्ट करो, प्लाज्मा एक्सक्लूड कर दो, मसल की बात कर रहा है।
बहुत सीरम एंड प्लाज्मा भी एक्सक्लूड कर दो, ब्लड भी एक्सक्लूड कर दो। अगर इस क्वेश्चन को ज्यादा बेटर होता कि ये स्मूथ मसल और दूसरे मसल्स का आपको एग्जांपल देते तो ज्यादा बेटर होता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि मसल्स की बात हो रही है तो प्लाज्मा, बोथ सीरम एंड प्लाज्मा ब्लड तो कभी होगा ही नहीं, तो स्मूथ मसल। इसमें इन्होंने कोई आपके लिए डाउट रखा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन एक विजुअल ऑर्गन आता है बच्चों के दिमाग में कि वे विजुअल ऑर्गन क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट अराउंड योर एब्डोमिनल कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोसेस, क्या नहीं होता है। ये बहुत ध्यान रखना, ये हम लोग करते हैं सीबीएसई या हो या हम लोग हो, मतलब जब हम लोग पेपर सेट करते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डज नॉट वाला क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इनकरेक्ट पूछते हैं, करेक्ट बहुत जल्दी नहीं पूछते, इनकरेक्ट ज्यादा पूछते हैं, डज नॉट वाला क्वेश्चन ज्यादा देते हैं आप लोग को ताकि आप कंफ्यूज करके गलती करो। तो हमें तो गलती चाहिए आप लोग, बट मुझे पता है आप लोग गलती करोगे नहीं, because you people are so good, brilliant students. You people are a prokaryotic cell does not possess, क्या नहीं हो सकता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोथ सेल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी नहीं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्या लगता है क्या होगा। प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, जैसे बैक्टीरिया आप अपने दिमाग में ले आओ, एग्जाम्पल ले आओ दिमाग में बैक्टीरिया, और उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें। बाकी हमें ऑप्शंस पे जाना ही नहीं है, हमें पता है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता ही नहीं है। हाँ, एक साथ में आप ऐड कर लो, न्यूक्लियस नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने कई बार कहा है बच्चों को, चाहे 10th हो या 9th हो, कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे बहुत फोकस करिए आप लोग। बहुत ज्यादा सीबीएसई अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस कर रही है। While observing a thin section of a plant stem, A, B, C, D, okay, 4 students sketched sclerenchyma as given। मतलब आप अगर ऑब्जर्व करे थे, आपको प्लांट स्टेम दिया गया था आपके लैब में और आपके 4 स्टूडेंट्स ने, 4 स्टूडेंट्स ने इसका ऐसा स्केचिंग बनाया, राइट। अब आपको इसमें से बताना है द करेक्ट डायग्राम कौन सा होगा। आप ध्यान रखो प्लांट का स्टेम है बच्चों, लीफ नहीं है, स्टेम है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम करूं, क्या मेरे ख्याल से ठीक ही है, विजिबल है आप लोग को। ठीक है, स्टेम है बच्चों, तो स्टेम में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें देखो ए जो है, ये इसमें थोड़ा सा लिविंग ज्यादा सेल लग रहा है, राइट। प्लांट सेल है ना बच्चों, प्लांट सेल है, उसमें भी स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट है, थोड़ा डेड पार्ट ज्यादा लगेगा। ठीक, डेड पार्ट होगा और साथ में जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है आपके पास आंसर आ गया, क्या है आंसर बताइए। यस, ए, दैट इज सी। आपका आंसर है ए, और आपका ऑप्शन ए बी सी डी में से फिगर है सी, और सी कहां पर है, ए, यानी कि आंसर है ए। अब क्यों है ये आपको पता है, ये वाला ठीक फिगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, फ्लोएम में पढ़ा है। ठीक है, याद आ रहा है। नाउ नेक्स्ट बायो क्वेश्चन और देखिए हम लोग, जरा खोजे बायो कहाँ है। देखो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग बायो के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट लो कम से कम, उसी तरह से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अटेम्प्ट लो। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द सेल ऑर्गेनेलीज विथ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर। अगर आपको ऑर्गेनेली का डेफिनेशन याद है, आप इमीडिएटली इसका आंसर कर लोगे कि हाँ भाई लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, गोल्जी ऑपरेटर्स है। फिर से देखो क्वेश्चन पढ़ो, द सेल ऑर्गेनेली विथ मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्ने, सिस्टर्ने की बात आ रही है, और लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस से अलोंग नहीं बोल रहे, नियर बोल रहे हैं। आ गया आंसर, आ गया, गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है पूरा वेसिकल्स का, फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का, जो कि आपको मिलता है जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस। तो आंसर है आपका डी, गोल्जी ऑपरेटर्स। गॉट इट। ये भी 18 भी हमारा बायो का पार्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, मैंने इसको कितना बार जब अपने लाइव लेक्चर्स पे भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ, भाई एक पेड़ है, ठीक है, बहुत जोर से आंधी आई, कहानी सुनाती हूँ मैं हमेशा अपने बच्चों को, बहुत जोर से आंधी आई, और एक मिनट बच्चों रुक जाओ जरा सा, मैं फिर आके कंटिन्यू।
हाँ जी बच्चों, तो कहानी सुना रही थी मैं आप लोगों को। कहानी ये है, मैंने कहा जैसा कि लाइव लेक्चर्स में भी हमेशा बोलती हूँ मैं, कि पेड़ है, ठीक है भाई, अगर हमें आंधी तूफान आती है, हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए घर है, घरों में घुस जाते हैं। अरे नहीं भी है तो चलो ठीक है भाई, हम उड़ तो नहीं जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे में काफी स्ट्रेंथ है। पर जब एक बात आती है पेड़ की, स्ट्रॉन्ग ट्री है या छोटा सा ही पौधा है, बहुत तेज आंधी आई, ठीक है, उसमें इतने सारे लीव्स हैं, बहुत सारे लीव्स हैं, क्या वो गिर जाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं। आखिर ऐसा क्या है लीव्स के, जहां पे लीव्स अटैच होता है पर्टिकुलर स्टेम से, ब्रांच से, क्या ऐसा टिश्यू है जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? वो रसलिंग करेगा, रसलिंग यानी कि मूव करेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। देखो आंसर तो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको कहूंगी फिर वही बात, आप एक्सक्लूड करना स्टार्ट करो। स्क्लेरेन्काइमा कभी नहीं होगा, स्क्लेरेन्काइमा काफी हार्ड होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। क्लोरेन्काइमा पार्ट ऑफ द कोलेन्काइमा, इसका सॉरी पैरेन्काइमा का है, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इसको भी एक्सक्लूड कर दो। पैरेन्काइमा जो है वो पैकेजिंग टिश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है, बच के ऑप्शन सी। अब देखो ये तरीका हुआ एक इस क्वेश्चन को अप्रोच लेने का। दूसरा तरीका है कोलेन्काइमा। डायरेक्ट आंसर अगर मैं बोलूं, कोलेन्काइमा इज अ स्ट्रक्चर which is present in the plants, basically the area where the leaves are attached to the branches, where the fruits are attached to the branches, and a particular dead cells are present over there at the interest, because when you have seen the diagram of कोलेन्काइमा ना, तो उसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भरा हुआ होता है। और वो कंपाउंड भी जरा याद करो इस क्वेश्चन के साथ, वो कंपाउंड है आपका पेक्टिन। याद आ रहा है? लिग्निन स्क्लेरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में पेक्टिन। कितना बार मैंने इसको लाइव क्लासेस में भी बताया बच्चों को। ओके, और क्या है क्वेश्चन? सिस्टम व्हेन स्टार्च इज एडेड टू हॉट वाटर, ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 बायो है। द ओनली सेल ऑर्गेनेली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली, वो भी प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक फिर इमेजिन कर लो बैक्टीरिया, जो कि वहां पे सेल ऑर्गेनेली, क्योंकि लाइसोसोम्स है, एक्सक्लूड करना स्टार्ट करो। प्लास्टिड नहीं हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता है, ये सब यूकेरियोट्स में होता है। राइबोसोम्स लग रहा है, लाइसोसोम्स लग रहा है। अब तुम लोग सुन लो, लाइसोसोम्स भी नहीं होगा, क्योंकि लाइसोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरियोट्स में पाया जाता है, सुसाइडल बैग्स है, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, हमें मिल गया आंसर, ribosomes. Either you know the answer, go to direct, just you tick the answer. If you have been given the OMR sheet for your exams, then do the circling. अगर सिर्फ टिक करने के लिए आता है तो आप टिक करके आओ डायरेक्ट। अगर नहीं आता है किसी बच्चे को, तो अप्रोच कैसे लेते हैं क्वेश्चन पर, उस पर मैं बार बार बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मेरा जो वीडियो है, ये दोनों तरह के बच्चों के काम आ जाएगा। जो बच्चों को डायरेक्ट आंसर आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो मेरे वीडियो को थोड़ा तेजी से रन करके देख लेंगे। और जिनको कुछ नहीं आ रहा है, भाई हमें कुछ नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिक समझ लें। ट्रिक ही होता है बेटा एमसीक्यू सॉल्व करना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। इफ द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड, टिप समझ रहे हो, शुगर केन समझ रहे हो, सब गन्ना, उसका ऊपर का टिप हटा रहे हैं, इवन देन इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब आप याद करो कि कौन सा सेल है, मतलब कौन सा टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग ऊपर हाइट बढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसमें भी वही करना स्टार्ट करो। आइदर इफ यू नो द आंसर तो ठीक है, फिर यू गो फॉर इट। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप एक्सक्लूड करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो हम लोग आंसर देखते हैं। लेटरल मेरिस्टम है, इंटर कैलोरी है। देखो इंटर कैलोरी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए। इलोंगेशन में हेल्प करता है, बीच के दो नोड्स होते हैं ना उनके बीच में। एपिकल मेरिस्टम जो है वो ऊपर में प्रेजेंट होता है, टिप में प्रेजेंट होता है। तो हमने उसको ही रिमूव कर दिया, टिप ऑफ द शुगर केन, यानी हमने एपिकल मेरिस्टम को तो हटा ही दिया फ्रॉम द फील्ड, फिर भी उसकी ग्रोथ हो रही है। कैम्बियम देखो बच्चों रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी लॉन्ग लॉन्ग करने के लिए नहीं, लेंथ बढ़ाने के लिए नहीं, उसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए। कैम्बियम हटा दो, एपिकल हटा दो, अब लेटरल बचा और इंटरकैलोरी बचा। लेटरल भी आप हटा दो, इसीलिए क्योंकि लेटरल भी इसका काम ठीक वही है, कैम्बियम की फॉर्मेशन करता है वो। तो आपका आंसर होगा बी, इंटरकैलोरी मेरिस्टम। आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप वापस जा करके आप उसको देख भी सकते हो कि हाँ मैम जो भी आंसर बता रही है, क्या वो मैम सही बता रही है कि नहीं बता रही है, वो आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ले आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। एक मिनट,
इसका तो हो गया। ठीक है, पर्सन सिटिंग ये हमारा नहीं है। अभी देख सेक्शन बी पर आ गए। अब इसमें से 24 क्वेश्चंस में से 20 ही आपको करना है, 20 ही करना है। इधर आप जो छोड़ना है, आपको बायो में कुछ नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा है वो छोड़ दो, मतलब टोटल आप 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सेक्शन बी पर आ जाओ। सेक्शन बी में भी आपको पता है कितने क्वेश्चन होंगे, 20, 24, उसमें से आपको 20 करने होंगे। बायो के जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। पहला तो नहीं है, 26 नंबर लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। अब इसमें क्या नहीं होता है प्लांट सेल में, देखो सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सब में होता है, वैक्यूल सब में होता है। अब ये सेंट्रियोल कुछ अगर आपके लिए नया है तो मैं बता दूं, सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए। प्लांट्स के केस में सेंट्रियोल की जरूरत नहीं होती है, वो सेल डिवीजन में काम आता है, ठीक है। उसके बिना ही स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन को आप दूसरा टर्म कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हम लोग टर्म कहते हैं। तो ये जो है मतलब इसकी जरूरत पर्टिकुलर सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है, सेल डिवीजन में इसका रोल प्ले होता है, हाँ उसके बिना काम हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रियोल। अभी और देख लें, हाँ ये भी ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। अब फिर मैंने कहा ना, बार बार ये लोग इस पे फोकस करते हैं, डज नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट की जगह उल्टा आपको देते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज आप फोकस करोगे क्वेश्चन पर, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, हड़बड़ी में आप गलती करके नहीं आ जाओगे, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आपको पूछा है डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस। अब आपको ये पता होना चाहिए ना कि न्यूक्लियस होता भी है कि नहीं होता है, तो इसके लिए चलो ठीक है, हम लोग भी इसका ट्रिक करते हैं। मुझे आंसर इसका पता है कि क्या होगा, बट ट्रिक करते हैं इसमें हम लोग, इसलिए क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि न्यूक्लियस कहाँ पे नहीं होता है मेच्योरिटी। देखो मैं बताते चली जाती हूँ। जब हम वेसल्स की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन डी से मैं स्टार्ट करी, एक मिनट। हाँ, तो वेसल्स जब होता है बच्चों, वेसल्स जो होता है उसमें होता क्या है, पूरी तरह से लिग्निन की डिपोजिशन होती है, डेड होता है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस नहीं रहेगा, डेड मतलब न्यूक्लियस होगा ही नहीं। अब देखो कंपेनियन सेल जो होता है बच्चों, कंपेनियन सेल जो क्या करता है ना, साइड से उसको सपोर्ट करता है। जैसे आपने इसको किसने पढ़ा था, फ्लोएम में पढ़ा था। तो जब सपोर्ट कर रहा है, लिविंग पार्ट होता है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें न्यूक्लियस तो होगा ही, ठीक है। फिर आप और ऑप्शन देख लेते हैं। आरबीसी एकदम क्लियर कट है, आरबीसी एक ऐसा सेल है हमारे पूरे बॉडी में, एक ऐसा टिश्यू है, टिश्यू में, ब्लड में, टिश्यू में एक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योरिटी पे नहीं होता है, सीव ट्यूब सेल्स में भी खत्म हो जाता है। तो आपके पास आंसर आ ही गया ना, डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, यानी कंपेनियन एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस आगे चल करके भी खत्म नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, ये भी क्वेश्चन हमारा बायो का ही है। स्टूडेंट यूज्ड अ रेड स्टेन फॉर माउंटिंग अ पील ऑफ ऑनियन। ऑनियन बोलो, जिसका रिस्पॉन्स टू द स्टेन रेड कलर का है ना बच्चों, तो रेड कलर का है तो क्या हो सकता है। आपको जब मैंने अपने लैब वाले जो भी वीडियोस है उसमें भी दिखाया है, यहाँ हालांकि इन्होंने रेड पूछ दिया, ज्यादा बेटर होता कि ये इसको पिंकिश डार्क मेजेंटा बोलते, पर चलो ठीक है, रेड है तो मिलता जुलता है, हमें पता है, हमारे पास आंसर है। मिथाइलिन तो कभी नहीं होगा, ब्लू होता है वो। और आयोडीन और ये सब इसमें यूज नहीं होता है। पील ऑफ ऑनियन है ना, अनियन है ना, तो सेफ्रनिन होगा। प्लांट सेल के लिए हम लेते हैं सेफ्रनिन। अब देखो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फिर से तो सेम क्वेश्चन ही लग रहा है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल। देखो प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, सब का सब जो है आपका यूकैरियोट है। एक अकेला, ये अकेला बच गया प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स, फिर इमेजिन करो बैक्टीरिया, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में बच्चे बहुत फंसते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। असर्शन रीजन में हम बायो का ले रहे हैं, ये फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ो पहले। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, क्या लगता है सही है ये? बिल्कुल सही है। हमने दो ऑर्गेनेली ऐसा पढ़ा था जो सेमी ऑटोनोमस था। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है, याद करो, यानी कि उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, उनके पास अपना खुद का मतलब डीएनए है, और मतलब वो अपना कह सकते हो कि दे कैन एबल टू प्रिपेयर देयर ओन प्रोटीन बेसिकली, ये मेन है इसमें। तो इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा रीजन पढ़ लो। दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एंड कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ये मुझे लग रहा है ना
कि यहाँ पर आर जो है वो पूरी तरह से गलत बोलता है। दे आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली, यानी कि मेरे हिसाब से सी है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर आपको अभी इसका मतलब नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से सुन लोगे। देखो कैसे, दे आर फाउंड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली। पहली बात तो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली पहले से तो एग्जिस्ट करता है, ऑर्गेनेली उससे कभी नहीं बनता। ठीक है, यही ये पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। एंड कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, जब डीएनए है तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कैसे लैक कर सकता है? पूरी तरह से आर गलत है। असर्शन ट्रू, आर फॉल्स। आपका ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बायो का है, मुझे लग रहा है बायो का ही है। एनिमल्स ऑफ कोल्डर रीजन्स एंड फिशेस ऑफ कोल्ड वाटर हैव अ थिक, हाँ यहाँ डिपोज टिश्यू की बात कर रहे हैं, हैव अ थिक लेयर ऑफ सबक्यूटानियस फैट। मतलब जो भी जानवर, कोई भी ऐसे एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन में रहते हैं, ठीक है, उनका कह रहे हैं कि एक थिक लेयर होता है फैट का उनके स्किन पर, यही वो बात कर रहे हैं। तो असर्शन तो सही लग रहा है। अब रीजन देख लें, द थिक लेयर ऑफ सबक्यूटानियस फैट। सबक्यूटानियस फैट ना या एडिपोज की बात करें बच्चों, इन्होंने सबक्यूटानियस करके बोल दिया तो कंफ्यूज मत करिए आप लोग। एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी टू स्केप आउट, द लेयर ऑफ फैट एक्ट एज सबक्यूटानियस इंसुलेशन ऑफ बॉडी। एकदम सही, एकदम सही। मतलब मेरे हिसाब से असर्शन सही है, रीजन भी सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन है। यानी कि ऑप्शन आप किस पे चले जाओगे बोलो? 33 में ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही है, ठीक है। इसी तरह से आप बच्चों दिमाग लगा करके बाकी भी पार्ट को क्या करो, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को भी। हमें एक और असर्शन रीजन मिल गया बायो का। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। कैसा है? इट ऑफर्स प्रोटेक्शन, डिफाइंड शेप एंड सपोर्ट। क्या सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट है? किसी को याद है आप में से कि हाँ सेल वॉल नॉन लिविंग पार्ट है? ठीक है, तो हम देखते हैं। सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। देखो, सेल वॉल जो होता है वो काफी हार्ड होता है, वहां पे बहुत ज्यादा डेड सेल का डिपोजिशन होता है। तो हम इसको कह सकते हैं, और सही ही है, आप उसका जब आप उसका सेल वॉल का लेयर याद करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी करके जो लेयर्स पढ़ाए थे, तो सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, एकदम सही। इट ऑफर्स प्रोटेक्शन, उसको ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सराउंडिंग से प्रोटेक्ट करेगा। डेफिनेट शेप, क्योंकि प्लांट सेल का एक प्रॉपर डेफिनेट शेप होता है और उसको सपोर्ट देता है। दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। तो मेरे हिसाब से दोनों सही है। ठीक है, तो यानी कि इसका 35 का आंसर क्या होना चाहिए बता दो? ए। कोई डाउट अगर आपको आएगा तो प्लीज आप मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप का भी मैं डाल दूंगी वहां पर अपना लिंक, और आप क्वेश्चन मेरा ईमेल आईडी भी मैं डाल देती हूँ, वहां पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है, और बायो का देखो, ये देखो लग रहा है क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इस पे पता है बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए कि एपिथेलियम के सारे याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एनसीईआरटी में जितना दिया उतना एक जगह एक बना लो कॉलम, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लो पूरा, और उसको याद करो आप लोग। जैसे एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट सेल्स फॉर्मिंग अ डेलिकेट लाइनिंग इन द लंग एल्वियोलाई कंस्टिट्यूट। एक तो पहले कहाँ ले जा रहे हैं ये देखो, आप लंग्स में ले गए। एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज, वहां पे चले गए ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे हमें पता है एपिथेलियम होगा, बट किस तरह का? देखो कितना कंफ्यूजिंग है। क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, देखो सिलिएटेड तो सबसे पहले हटा दो, क्यूबॉइडल को भी आप हटा दो। ठीक है, स्क्वाइमस से ही है। स्क्वाइमस में क्या सिंपल है, क्या स्ट्रेटिफाइड है? जो एल्वियोलाई होता है ना बच्चों, बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला होता है। तो स्ट्रेटिफाइड तो किसी हालत में नहीं होगा। मतलब इस पे मैंने थोड़ा ट्रिक लगाया कि आप ट्रिक ही लगाओ, ट्रिक से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। मैंने क्यूबॉइडल हटा दिया, सिलेटेड हटा दिया, फिर हमारे पास दोनों स्क्वाइमस बचा, स्क्वाइमस बचा, एकदम पर्टिकुलर चले गए ना ये लोग। सिंपल है कि स्ट्रेटिफाइड है। फिर आप स्ट्रक्चर पे मैंने आपको ले गई कि लंग के एल्वियोलाई स्ट्रक्चर पे आप जाओ। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा होता है। तो फिर क्लियर है कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक और देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन? आप डबल मेम्ब्रेन याद कर लो, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड होता है, न्यूक्लियस होता है। सिंगल मेम्ब्रेन में याद करो, गोल्जी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैक्यूल होता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में डायरेक्ट वैक्यूल दिया, आप वैक्यूल पे टिक करो, आगे बढ़ो।
ओके 42 भी हमारा बायो है। अ लॉन्ग ट्री हैज सेवरल ब्रांचेस, द टिश्यू दैट हेल्प्स इन द साइड वे यानी साइड से निकलने में, मतलब कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। किसका कंडक्शन है? वाटर का। तो पहली बात तो जाइलम की ही बात हो रही है, इतना तो हम सबको पता है। तो जाइलम वाला ऑप्शन जो है बी और सी में दिया है, ठीक। अब बी और सी में से कौन सा होगा? जाइलम पैरेन्काइमा नहीं होगा, वो तो फिलिंग का काम करता है। जाइलम वेसल्स होगा। और इसमें से आप ए और डी पे तो नहीं जा रहे हो ना कोई भी, क्योंकि जाइलम होना चाहिए। जैसे कंडक्शन ऑफ वाटर आया, जाइलम होना चाहिए। अब वेसल्स होना चाहिए कि पैरेन्काइमा, तो दोनों में मैंने आपको कहा ट्रिक लगा लो, पैरेन्काइमा फिलिंग का काम करता है। वेसल्स इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा होगा मुझे लगता है आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे साथ। आई नो, आई एम 100% कॉन्फिडेंट ओवर दैट। Which of the following settles down when allowed to stand under undisturbed? ये हमारा है नहीं, हालांकि पार्ट नहीं है हमारा, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ये वाला देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक? ER, ठीक है। ER का काम होता है जिसमें कि राइबोसोम्स होते हैं वहां पर, और प्रोटीन का सिंथेसिस का काम होता है। और इसके अलावा वो चैनल एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, आगे कुछ भी है तो वो गोल्जी एपरेटस को पास करता है। ये सब फंक्शन है, एक उसका फ्रेमवर्क बनाता है हमारे पूरे सेल का। अब देखते हैं यहाँ पे मांग क्या रहा है। इज नॉट रिलेटेड, कभी भी सीधी बात तो करते ही नहीं है, नॉट रिलेटेड मांग रहा है। इट ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। नॉट रिलेटेड तो नहीं लग रहा है, रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इट कैन बी साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज, होती हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज जिसमें कि एक प्रोटीन सिंथेसिस है, राइबोसोम्स के थ्रू होता है। ओके, इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल। बिल्कुल भाई, ट्रांसपोर्ट चैनल तो मैंने अभी जस्ट कहा था कि ER जैसे ही दिमाग में आए तो क्या क्या फंक्शन है उसे याद कर लो। अब हमारे पास बच गया ऑप्शन डी ही ना, तो हमें पता है कि डज नॉट करेक्ट वाला ही है, नॉट रिलेटेड वाला ही है। इट कैन बी साइट ऑफ, अरे वाह वेरी गुड। ये तो पहले डायरेक्ट आपको, अगर नहीं भी मैं ट्रिक बताती तो भी आप बता देते कि ये कभी नहीं होगा मैडम, क्योंकि ये तो प्रोटो इसका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, राइट। चलो हम लोग एंड पर आ गए, सेक्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? एपिडर्मिस याद करो, एपिडर्मिस आउटर एक लेयर है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। अब फिर ये बात कर रहे हैं नॉट अ फंक्शन, तो नॉट अ फंक्शन में क्या होना चाहिए? जब प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रहा है ना भाई, तो प्रोटेक्शन तो होगा। कंडक्शन ऑफ फूड नहीं लग रहा है, क्योंकि बाहर प्रेजेंट है ना बच्चों, तो कंडक्शन ऑफ फूड हमें पता है फ्लोएम करता है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, ट्रांसपिरेशन एपिडर्मिस का काम है, बिकॉज एपिडर्मिस में स्टोमेटा की लोकेशन होती है और स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो हमारे पास इसका आंसर है बी, कंडक्शन ऑफ फूड। ओके, टू प्रिपेयर अ माउंट ऑफ ह्यूमन चीक सेल द सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम। हालांकि पता नहीं प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को कितना ये करवाया गया, बट जब आपको चिक सेल यानी एनिमल सेल, और अगर हम बनाते हैं तो हम इसको लेते हैं हमने चिक के अंदर से, आउटर साइड ऑफ द चिक विद अ ब्लेड। बाप रे, काम कहीं मत करना, सोचना भी मत, कट जाएगा। वी इनर साइड ऑफ द चिक विद अ टूथपिक, ये लग रहा है, फिर भी और देख लेते हैं। इनर साइड ऑफ द चिक विद अ ब्लेड, प्लीज नहीं, ब्लेड से कट नहीं करना। आउटर साइड ऑफ द चिक विद अ टूथपिक नहीं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इनर साइड ऑफ द चिक विद अ टूथपिक एक होता है, या नहीं अगर हमारे पास टूथपिक होता है तो मैच स्टिक से भी हम लोग कर ले लेते हैं, सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, बट ज्यादा अच्छा इन्होंने दिया टूथपिक, सही है इनर साइड। अब बात है कि बाहर से कलेक्ट करोगे तो क्या आएगा हाथ में? कुछ नहीं आएगा। अंदर आपके मुंह के बकल कैविटी के अंदर से आप कलेक्ट करोगे चिक सेल को, ह्यूमन चिक सेल को, अगर आपको देखना है तो। अब लास्ट सेक्शन पे आ रही हूँ मैं, सेक्शन सी। काफी बड़ा वीडियो हो गया, बट काफी जरूरी है आप लोग के लिए। मुझे एटलीस्ट एक वीडियो तो बनाना ही था कि हाँ, एक लेक्चर तो चाहिए ही था कि हाँ आप किस तरह से अटेम्प्ट करो। 10th पे इतनी बातें हो रही हैं, 9th के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके भी एग्जाम्स होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर स्कूल में वो CBSE के पैटर्न पे ही आप लोग को फोकस करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें किस तरह के, देखो ये ना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है बच्चों। ये पहला तो पूरी तरह से केमिस्ट्री है, आप इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। आपको आंसर भी एक्सप्लेनेशन पार्ट में मेरे PDF में मिल जाएगा आपको इस वीडियो के साथ, इसलिए वहां इश्यू नहीं है कोई भी। अब देखो ये हमारा बायो का पार्ट है। मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि एक बार आप एक रीडिंग कर लो केस बेस्ड स्टडी की, और उससे रिलेटेड कोई जरूरी नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है बच्चों कि पैराग्राफ्स में आपको आंसर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। ये टोटली कंसेप्ट बेस्ड होता है कि आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट कैसा है, आपने वो टॉपिक कैसा पढ़ा हुआ है, उसके आधार पे होता है। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि 90 मिनट्स का पेपर है,
तो आइदर आपके पास दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक बार रीड कर लो, नहीं तो दूसरा डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे चले जाओ। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्योंकि चूंकि आप लोग के लिए एक वीडियो बना रही हूँ तो मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, मुझे तो 90 मिनट्स का कोई इशू है नहीं। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कहते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल सही। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Foreign materials entering the cell, such as bacteria or food, as well as old organelles, end up in the lysosomes, which break complex substances into simpler substances. Mitochondria have two membrane coverings. The outer membrane is porous, while the inner membrane is deeply folded. अब मतलब लाइसोसोम से अब ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी दो ऑर्गेनेली पे बात की इन्होंने। Mitochondria are strange organelle in the sense that they have their own DNA and ribosomes. ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था तो वहां पे राइबोसोम्स मुझे बोलना था, डीएनए और राइबोसोम जो हेल्प करता है, दे आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस। उसके बाद फिर क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। Vacuoles are storage sacs for solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cells while plant cells have, चलो दो इसने ही ले लिया। 53. Which of the following statement marks a difference between a plant cell and an animal cell? अब आपको देखो ये लग रहा है क्या ऊपर में कहीं से भी पैराग्राफ से है ये क्वेश्चन? आपके मैंने कहा था ना कंसेप्ट पे, पूरी तरह से कंसेप्ट पे। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। मांग क्या रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मार्क्स अ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस चाहिए इनको, तो एक या एक से ज्यादा हो सकता है। पहला लग रहा है प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स, ये तो लग ही रहा है, ठीक है। दूसरा, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल्स, ये तो गलत। प्लांट सेल्स हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन व्हाइल एनिमल सेल्स हैव बोथ, गलत। प्लांट सेल्स हैव मोर प्लास्टिड्स व्हाइल एनिमल सेल्स हैव, बिल्कुल गलत। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेक अ मार्क्स अ डिफरेंस, तो आपका 53 का आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ वन, ठीक है। 53 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी ओनली, दैट इज ओनली वन, सी ऑप्शन। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया folds that are shown in the below diagram increases surface area for, ये जो फोल्डिंग है ना बच्चों, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। इसका किसका किसका सरफेस एरिया आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी का सिंथेसिस करना, जनरेटिंग एनर्जी। तो नन ऑफ दिस तो हटा दो, फॉर एब्जॉर्प्शन भी हटा दो, क्योंकि फॉर एब्जॉर्प्शन इन्होंने ऑप्शन दिया है बिकॉज विलाई का काम होता है वो। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम नहीं है। एटीपी जनरेटिंग एनर्जी केमिकल रिएक्शंस, यही ऑप्शन सी, 54 ऑप्शन सी। चलो जल्दी से एंड कर रही हूँ मैं अब। 55 ऑर्गेनेली अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, न्यूक्लियस के अलावा और कौन सा ऑर्गेनेली है? दो है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। यहाँ पे इन्होंने कोई एक ही दिया है तो एक पे टिक करो। गोल्जी एंडोप्लाज्मिक लाइसोसोम्स को हटाओ, माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक करो, सही। 56 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, लोकोमोशन नहीं होता है, स्टोरेज तो पक्का होता है, प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल एंड वेस्ट एक्सक्रीशन। तो इसमें से देखो बी और डी पे भी मैं कंफ्यूजन, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है, तो जो बेटर ऑप्शन है उस पे हम जाएंगे। अच्छा ठीक है, सही है, नॉट अ फंक्शन, मैडम भी कंफ्यूज कर गई। नॉट अ फंक्शन मांग रहा है, फिर ये सीधे बात नहीं कर रहे, घुमा के बात कर रहे हैं। नॉट अ फंक्शन क्योंकि बी डी सी है, तो वापस से क्वेश्चन पे जाओ। नॉट अ फंक्शन पूछ रहा है तो लोकोमोशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से मैंने जितना आपको करवाया आज के वीडियो में, इससे आपको काफी आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे इसको करना है। और ये पूरा पीडीएफ मैं डाल देती हूँ क्योंकि इसमें नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी हर एक क्वेश्चन का मिल रहा है, ठीक है। तो काफी लंबा वीडियो है, देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई विल कम विथ अनदर वीडियो विथ अनदर सैम्पल पेपर डिस्कशन। थैंक यू सो मच।